Good morning, students. I welcome all of you in another class of corporate social responsibility. And my today's topic is reasons for ethical problems in business. First point is degradation of values and ethics and shift in value system. First, the topic tells us about what kind of ethical problems a business faces when it generally starts to fulfill all the ethical requirements of a business, or in another sense, why ethics is not considered as a primary objective for any business groups or any business houses. So, in this topic, we have to study about what are the different reasons for ethical problems in business and what are the issues, what are the challenges for an organization, or why an organization does not remain consistent for the ethical objectives, moral rights. First point is degradation of values and ethics and shift in value system. So generally when I speak about ethics, ethical behavior, then there are many qualities like honesty, trust, trustworthiness. They all generally drives an ethical behavior. So values are making value system. Example, in an organization where the top management they follow good values in their organizations will also receive same in return. Same applies to the industries which are or different corporate houses which are having a very weak value system. That will be result of their deteriorating values, their does not remain consistent towards their ethical responsibilities. So degradation of values means when an organization starts to or does not follows ethical behavior will generally has a value system which will be developed within an organization that will not uh, that is not good for the organization. So here personal values are primarily imbibed from parents, teachers, relatives and elders, and as a person grows experiences and knowledge refine these values. So it's very simple. Where these values are being learned, these values are being learned from, for examples, when we were child. So we have learned these values from our parents, teachers, relatives and elders. And as we have grown up, different experiences and education system or a good knowledge has made some more enhancement in our overall personality and our values. So, a organization with a good value system will generally become more successful than an organization whose value system is very weak. Many examples we can give for this, like for example Tata, Reliance. These companies generally they stiff or they stick with their values and they remain consistent or they create a kind of a value system within their organizations
so they may not face any challenges in future, right? So the first reason for ethical problems in business is um, a organization's own uh, degradation of values and its value system, right? So this is the first reason or first issues or first challenges for any organization to build a very good value system within their organization. So it obviously will start from the top management. जब top management में जो कोई ऐसा लीडर है जो अच्छी वैल्यूज़ के साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाता है, देन द रेस्ट अदर पीपल्स फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दे विल हैव द सेम principles, values, and it will create a good value system within that organizations, right? The famous examples we can take it from government. If the leader, if the prime minister, or if it is a chief minister who is himself practicing good values, so it will create or it will also give good values to the peoples of the country. Same happens, right? So values are very important because values can create a good value system. That is the first point. Second point is lack of integrity and truthfulness in dealings. Lack of integrity means integrity means it is a coordination. Integrity means it's a feeling of oneness. When within an organization, when there is a better integration of its employees, there is a better integration of different levels of managements, then a better coordinations, a better communications, and truthfulness in dealing or in predicting different things to their employees, to their stakeholders. So this integrity will come with personal values and ethics. Personal values of truthfulness, commitment, justice, honesty, transparency, impartiality, etc. guide ethical behavior in business. That is, when you create an environment of innovations, promotions will be based on the performance. When you reward the employees which generally deserves that promotions, then you create a kind of a values within an organizations or a climate within an organizations where employees will be very effective, right? So personal values, commitment, justice, honesty, transparency, impartiality of a leader itself will set an example for their employees, that their organization's leader also may follow such kind of principles and employees also may follow the same thing in return. So lack of these values result in unethical practices. जनरली जैसा लीडर है, लीडर्स की क्वालिटीज़ है, उसी हिसाब से उनका मैनेजमेंट भी वैसे ही हो जाता है. हम अपने कॉरपोरेट हाउसेस के कितने ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे एक प्रमोटर, एक चेयरमैन ऐसे अनएथिकल एक्टिविटीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन चलाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर नहीं होता है. एग्जाम्पल्स हम आए दिन देखते हैं मार्केट में. कई MLM कंपनीज़ हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़. उसका एग्जांपल आप दे, एमवे है, ओरिफ्लेम है, राइट, वेस्टीज है. ऐसी बहुत सारी MLM कंपनीज़ हैं मार्केट में. तो जनरली अगर ये कंपनीज़ अपने प्रेजेंटेशंस में कुछ ऐसा दिखाएंगे कि आप इतना सेल करोगे, आपको इतना मिलेगा, आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है, आपको टूर पे भेजेंगे, ये सारी चीज़ें वो शो करेंगे. बाद में 1-2 साल में जब पता चलेगा कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, उन्होंने बहुत ही अनएथिकल टाइप से बिजनेस चलाया है, तो उस कंडीशंस में जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे या उनके साथ जुड़े लोग होंगे तो वो उन पे उनको विश्वास नहीं आएगा. फ्यूचर में भी वो लोग उन पे विश्वास नहीं करेंगे. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इंटीग्रिटी फॉर बेटर कोऑर्डिनेशंस,
organization should practice truth in dealing. Third point is belief that ethical behavior and successful business is inconsistent. Belief that ethical behavior and successful business is inconsistent. It means there are many business houses, many chairmen, CEOs, person at the top management, they believe that when you follow ethical practice, uh, there will be less profit for the organization. For better profit, you should skip or you have to avoid certain ethical practices and you have to indulge in unethical practices. सो बिलीफ मीन्स वॉट बिलीफ इज पहले से ऐसी धारणा है ऐसी कि कई बिजनेस हाउसेस के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जो लीडर हैं वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा अगर हम बिजनेस प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाएंगे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे क्योंकि हम सारी चीज़ें लीगल करेंगे तो हमारा क्या उसमें फ़ायदा होगा। एक फेमस एग्जांपल है जैसे हम इनकम टैक्स के लिए कई लोग इनकम टैक्स नहीं भरते राइट, तो उनका कहना है कि इनकम टैक्स जो है वो हम भरेंगे तो हमको क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है राइट। तो बिलीफ है, सो दिस बिलीफ दैट एथिकल बिहेवियर एंड सक्सेसफुल बिजनेस इज इनकंसिस्टेंट। तो हम ऐसी धारणाएं मार्केट में ऑलरेडी है, लोग सोचते हैं कि भाई कौन आजकल फॉलो करता है, कोई फ़ायदा नहीं है फॉलो करने में राइट। पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप चलाओगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। So that is the third challenges, third point, that is ethical behavior और सक्सेसफुल बिजनेस इनकन्सिस्टेंट। तो ऐसा नहीं है राइट। टाटा का एग्जांपल ले, ऐसी कई कंपनी का एग्जांपल ले जो कितने साल से चल रही है, आज से नहीं 100 साल से चल रही है, 150 साल से एक कंपनी चल रही है जो कि एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है पर आज भी सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है राइट, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप अपने प्रिंसिपल्स पे आप अड़े रहो राइट। सो दैट इज़ बिलीफ है, ऐसे लोग सोचते हैं पर कई कंपनी जो है सक्सेसफुल भी है और एथिकली बिजनेस भी करती है। फोर्थ पॉइंट इज blinded by self interest and greed. So another challenges that comes, it's blinded by self interest and greed. Self interest means it's talking about personal gain and greed means it is also related with how for the personal gain the top manager, top management, they use the monies of a company for their betterment. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंपनी का हेड हूँ तो मैं कंपनीज की जितनी भी सारी चीज़ें वो यूज़ करूँ राइट, वेस्ट करूँ उसका, तो ये भी एक चीज़ में गलत है कि आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो, कंपनी को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम के विजय माल्या का एग्जाम्पल ले, तो विजय माल्या कंपनीज की सारी चीज़ें यूज़ करते थे, मतलब आप देखो उनकी जो हाई लाइफस्टाइल्स है राइट, तो पर्सनल गेन है, कंपनी चाहे घाटा करे उससे दे आई मे नॉट बी दैट मच बट आई विल बी इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल गेन, सेल्फ इंटरेस्ट। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो मैनी एंटरप्रेन्योर्स, CEOs for whom only profitability and increasing market capitalization are only ways in which they see companies successful. So this is also a kind of a blinded self-interest or a greed. Fifth point is insensitive about impact on environment. Insensitive means you are very rigid. You don't change your policy. Sensitive means you change with the climatic conditions, you change with the rules and regulations of a government right? But if
factories, for example, they think that it is for their profit, they pollute the environment, then it is also a unethical behavior. So, for example, factories releasing polluted effluents in rivers, lakes, ponds without treating it properly, it's unethical. So, generally ऐसी चीज़ है कि हर कोई सोचता है कि मेरा घर साफ रहना चाहिए, मेरा घर साफ रहे उतना ठीक है, कचरा अगर मैं बाहर फेंकूँ तो मेरा घर साफ रहना चाहिए, ना कि मैं ये सोचूं कि पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है, वो सारी क्लीन होनी चाहिए, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होने चाहिए। हम कोरोना का एग्जाम्पल ले तो वो भी एक रीज़न क्या है, वो किस कारण हुआ है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं कि हम जो पूरी फूड साइकिल है उसको हमने चेंज कर लिया है। मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए हम जानवरों को खाने लग गए, मतलब कई ऐसी चीज़ पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आप नुकसान करोगे वो सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा, उसका रिजल्ट परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि सेंसिटिव आप बिजनेस करो, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड, बट यू ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करो। सेंसिटिव चेंज करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। दैट्स द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज globalization of businesses and its challenges. So another point for ethical issues, for the reason for problems in ethical business, it's globalization of business and its challenges. So generally we see in today's world, because of globalizations, many companies are uh, started indulging in unethical practices, and they want to survive in the market. For that they do many activities which are not acceptable, right? So globalization means when companies or when the entire world becomes a very small place, small market. तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर रेमंड की शूटिंग सेटिंग खरीदनी है तो आप दुबई में भी जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, राइट? यूएस में जाओगे तो वहाँ भी आपको रेमंड का शोरूम मिल जाएगा, इंडिया में भी मिल जाएगा, श्रीलंका में भी मिल जाएगा, पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अब कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करती है, कर रही है और आगे भी करेगी। तो इसके कारण चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस ये आएंगे कि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो या कोई दूसरी कंट्री की कंपनी आपके कंट्री में आती है तो आपको उसके साथ साथ चेंज होना पड़ता है, या कॉम्पिटिशन्स में टिकने के लिए आपकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, आपकी कंपनीज में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ती है। तो इसी के कारण कई एंटरप्रेनर ऐसा सोचते हैं या ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएथिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी 5 कंट्रीज़ है जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली टेंडर्स उन्होंने इनवाइट किए। एग्जाम्पल, हमको डिफेंस के लिए हमको एक फाइटर प्लेन चाहिए, तो ऐसी 5-6 कंट्रीज़ है जो कि इंटरेस्टेड है, टेंडर्स वो लोग देते हैं। पर एक कंपनी है जो कि ऐसा डीलिंग करती है कि आप जनरली कमीशन ले लो पर हमारी कंट्रीज़ को टेंडर दे दो। तो ये एक टाइप से करप्शन है, ये अनएथिकल है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ये प्रेशर रहता है कोई भी कंपनीज के ऊपर कि उनको मार्केट में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, कैसे करें, राइट?
So that is the reason why many entrepreneurs they start doing a business in an unethical way. Seventh one is fast changing technology and innovation. The famous examples we can give of a mobile phone. In today's time, mobile phone has become a device, very important device for a person, because without mobiles you cannot imagine your a single day, right? पूरा दिन हम नहीं निकाल सकते अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है आजकल, ऐसी स्टेज आ गई। तो इनोवेशंस का मतलब होता है कि कंपनीज आर changing, innovating, technologies are changing. Examples, you can see mobile phone. Every day we find a new change in technology in mobile phone, right? So this is a pressure. There is a continuous pressure for a company. They have to innovate. Many entrepreneurs, they take it in a positive sense. Many, they also indulge in unethical practices which is not acceptable. So fast changing technology or innovations also plays a very important role in, or it is also a ethical issues which a company is facing. 8th point is poor leadership, right? So poor leadership means it's who is the a promoter of an organization, and what is or what are his personal values, and how it has formed the objectives for the organization, and how he has created a environment of work. So sometimes poor leadership is sometimes the reason for unethical practices. The progress of an entire business organization is partly dependent on the type of leaders this organization have. So leaders are very important. Like at present, India is led by BJP ran government. Narendra Modi is the Prime Minister of it. How India is progressing in different sectors. There are many loopholes of also our leadership, but there are also some positive points of our leaderships that we can see. A strong leader, what is or what are their qualities? It will lead to a very faster development. So लीडर कैसा है? अब लीडर में जान है, लीडर में दम है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी दम होगा, राइट? क्योंकि लीडर्स का जो ड्रीम है, रिजल्ट क्या सोचता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं। तो लीडरशिप है, गुड लीडर। रतन टाटा एग्जाम्पल, रतन टाटा 70 साल से ऊपर के एज के हो गए, मगर आज की डेट में भी उनको एडवाइजरी बोर्ड पे ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है जो कि एक प्रेजेंट चेयरमैन नहीं ले पाता है, तो वो रतन टाटा से पूछ सकता है कि आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कह सकते हो, तो इट विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन। सो गुड लीडर्स आर ऑलवेज right having a good qualities. So that is 8th point. Now the last point of the topic is employees unethical practices may be a result of, first one is poor internal communications, then lack of management support, need to meet goals, pressure to balance work and family, coercion, conflict of interest, long working hours, no recognition of achievements, and company politics. तो ये डिफरेंट, ये 9th पॉइंट है, उसको अगर आप समझोगे तो वो ये इस हिसाब से कहता है कि एम्प्लॉयज़ क्यों
इंडल्ज हो जाते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी एक एम्प्लॉयज़। तो उसके रीज़न ये है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट आप कहे कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है। इसका मतलब क्या है कि एक बेटर कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सबके दिमाग में क्लियर है। आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन है वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियरली नहीं समझाओगे तो वो नहीं समझेंगे। वो सेम अप्लाई करता है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके सामने आप बोल सकते हो कि ये गलत है, सही है तो उसको आप बढ़ावा दे सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के एम्प्लॉयज़ जो है वो सेम टू सेम बिहेव करेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयज़ क्यों अनएथिकल प्रैक्टिस में इंडल्ज हो जाते हैं? तो पहला रीज़न ये है कि जो अंदर का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, राइट, या उसमें कोई ना कोई खामी है। उसी के कारण दूसरे एम्प्लॉयज़ में मतभेद हो सकते हैं, राइट। कोई एम्प्लॉयज़ को सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स पता नहीं है, उनका रोल क्या है वो पता नहीं है। तो ये जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही बेहतर आप बना सकते हो। जैसे मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा कि अब कोरोना के कारण या उससे पहले डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च हो गया था। तो उसके बेनिफिट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम अब घर बैठे कर सकते हैं। जैसे मेरे को बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ। आजकल पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो एक बेटर सिस्टम है पेमेंट मेथड का। तो कम्युनिकेशंस का सिस्टम भी अच्छा है वो, राइट, जल्दी से काम हो जाता है। अगर आपको रेलवे की इंक्वायरी करनी है तो आप इंटरनेट से कर सकते हो, तो बेटर कम्युनिकेशन से। तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको कम्युनिकेशंस को बेहतर करना पड़ेगा, वरना ये भी एक टाइप का चैलेंजेस है, आपके एम्प्लॉयज़ अनएथिकल प्रैक्टिस में इंडल्ज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। जब ऑर्गेनाइजेशंस के विद इन एम्प्लॉयज़ को जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो डिफरेंट क्वालिटीज़ जैसे कि कमिटमेंट है, ट्रस्ट है, ये सब खो देता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को मेरी पड़ी नहीं है तो मुझे क्या ऑर्गेनाइजेशन की पड़ेगी। तो एक सिंपल लॉजिक है, ऑर्गेनाइजेशन मेरी केयर करता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे पूछता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे परफॉर्मेंस को ग्रेड नहीं देता है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों करूं। ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट नहीं करता है जब मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट। सो जब मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं रहेगा, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं रहेगा, कंपनी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाएगा या रहेगा। तो दैट इज लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। थर्ड पॉइंट इज नीड टू मीट गोल्स। तो जनरली कॉम्पिटिशन्स के कारण, टारगेट के कारण कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाएगा। उसका एग्जांपल हम दें कि HDFC बैंक में कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है तो उसका मैनेजर से डेली बेस पे बोलता है कि आपको बिज़नेस लाना पड़ेगा, आपको बिज़नेस लाना पड़ेगा। तो इस प्रेशर में कई बार कोई एम्प्लॉयज़ है तो ज़बरदस्ती कोई कस्टमर्स को कोई भी पॉलिसीज़ के लिए प्रेशराइज करेगा, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिसी ले लेगा। तो ये चीज़ें होती है। LIC में भी एग्जांपल, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐसे ही सीन होता है। तो मीट गोल्स मतलब एम्प्लॉयज़ अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो जाता है, जो भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली, राइट। सो देर आर मेनी थिंग्स, many situations where an employee has to also think about their families, and they also have to think about
the work. Both the things are very important. मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं बोलूँ कि मेरे को फैमिली और वर्क दोनों को मैनेज करना है, तो मेरे छोटे बच्चे हैं, राइट, उनका भी ख्याल रखना है मेरे को मेरे स्टूडेंट्स भी हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, लेक्चर्स भी लेना है, बिजनेस भी करना है. देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव टू फुलफिल. पर करना पड़ेगा, ये करना ही है, राइट. तो मैंने तो ये धारणा बना लिया कि इसको कितनी अच्छी तरह से मैं कर सकता हूँ, हाउ मच better way I can do that. So when there is a lot of pressure, right, sometimes it is difficult for an employees to balance work and family. उसी टाइम पे मैं बोलूँगा कि जब मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, आगे आता है, then it is a great relief for employees, right. So that is pressure to balance work and family. Next point is coercion. Coercion means it is the power, right. तो एग्जाम्पल कोएर्सन का मतलब आप कह सकते हैं लीडरशिप. तो मेरी लीडरशिप में कोई डिफरेंट टाइप्स की लीडरशिप है. जो एग्जाम्पल के ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, डिक्टेटरशिप होती है, मतलब एक राजा है, बाकी सब प्रजा है. एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है कि सबकी राय ली जाती है, उसमें सबसे पूछा जाता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, राइट. तो लीडरशिप कैसी है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा. अगर डिक्टेटरशिप है, एक की बात को मनवाया जाता है, तो ये गलत है. एग्जाम्पल का हम ले कि नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जैसी गवर्नमेंट सोचेगी, जैसा मतलब किंग जोम सोचेगा, वहाँ का जो उत्तराधिकारी है वो जनरली उसी टाइप से पावर आप प्रिवेल करोगे, वैसे ही आपका सिस्टम बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये है कि सपोज कोई एम्प्लॉयज़ काम करता है तो उसमें अपना बेनिफिट भी कई बार देखता है कि इसमें उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, राइट. जब इनमें मतभेद होते हैं, जो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ उसके बाद मेरे को उसका ठीक से फीडबैक नहीं मिलता है, तो जो इंटरेस्ट है वो काम के प्रति भी घट जाएगा और हमेशा देर विल बी ए डिस्टर्बेंस इन योर वर्क, राइट. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स always there will be a dispute among your personal life, about your personal gain and about organizations both. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉन्ग वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स, राइट. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन is having a very long working ways, then employees sometimes they indulge in unethical practices, right. So long working hours be a result है. Next point is no recognition of achievement. It means if you does not reward your employees timely, then and employees will indulge in unethical practices. रिकग्निशन, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको आप अच्छे से ट्रीट करो, उनको रिवॉर्ड दो, उनको मोटिवेशन दो, राइट. उनका सबके सामने यू हैव टू गिव देम रिवॉर्ड. दैट इज मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स यू शुड गिव टू रिकग्नाइज करो. जो अच्छा जनरली पर्सन है उनको आप अच्छे से रिकग्नाइज करो, राइट. रिकग्नाइज कर recognize. Then company politics means company should not indulge in political work, right. Politics should be avoided and there should be a climate of a good ethical climate should be there, right. So these were different points of our topic, that is problems or ethical issues in a business. Thank you.